نیکسٹ میں اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ایکسرسائز 7.2 ہے. اس میں ہم سولو فار ایکس اس کو ہم کریں گے, یا ہم اردو میڈیم کے بچوں کے لیے مندرجہ ذیل مساواتوں کے حل سیٹ معلوم کریں. تو ہم نے یہاں پہ اسٹوڈنٹ سولوشن سیٹ نکالنا ہے. ایکسرسائز 7.2 ہے ہمارے پاس, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ آپ کے پاس کویشچن ہے. تو اوکے جی, لیٹس اسٹارٹ اٹ. اس کو شروع کرتے ہیں. اچھا, اس میں اسٹوڈنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ویلیو ہے 3x-5, اس کی سائڈز پہ آپ کو بار نظر آ رہا ہے. اس کو ماڈ کہہ لیں, بار کہہ لیں, اور یہ = 4 ہے. تو ان کویشچنس کے اندر سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے وہ اس بار کو ختم کرنا ہے. مطلب آپ اس کو یوں لکھ سکتے ہو, 3x-5 = +-4. اب یہ جو رائٹ سائڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں +-4, یہ پلس مائنس آپ لیفٹ سائڈ میں بھی لکھ سکتے ہیں. تو ایکچولی یہ بار کو ختم کرنے سے +-4 آ گیا. تو جیسے ہی آپ نے بار کو اسٹوڈنٹ ختم کرنا ہے, اب اس کویشچن کے 2 پارٹ بن گئے. تو دیکھیے گا, اس میں سب سے جو پہلا پارٹ ہے وہ کیا ہے, یہ اس کے ہم 2 پارٹ بنا لیتے ہیں. دیکھیں, اس میں ایک بن جائے گا 3x-5 +4, اور ایک بنے گا 3x-5 -4. مطلب اسٹوڈنٹ ایک دفعہ لیفٹ سائڈ کو ہم نہیں چینج کر رہے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیفٹ سائڈ ہے, لیفٹ سائڈ کو ہم نے سیم لکھا ہوا ہے, مگر جو رائٹ سائڈ ہے اس کو اب ہم 1 ٹائم پازیٹیو لکھ دیا اور 1 ٹائم نیگیٹیو لکھ دیا. اب دیکھیں نا, +4 میں نے اس کے ساتھ لکھ دیا. پلس لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کسی ویلیو کے ساتھ کوئی سائن نہ ہو تو پلس کا ہی ہوتا ہے. اور -4 میں نے یہاں پہ لکھ دیا. اب کیا کیا جائے گا, 3x ایز اٹ آئے گا, یہ 4 ایز اٹ چلا گیا, -5 ایکول کو اس طرف جا کے یہ بن گیا +5. تو یہ 3x = کیا آ گیا, 4 + 5 آپ جانتے ہیں 9 ہے, اور x ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. تو 9/3, تو یہ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 3. آپ جانتے ہیں 9 کو 3 پہ ڈیوائڈ کریں تو ہمارے پاس 3 آ جاتا ہے. تو اس میں دیکھ لیں, اب آپ یہ 3x ایز اٹ آ گیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں -5 اس طرف جا کے یہ پلس کا ہو گیا, اور -4 ایز اٹ آ گیا, اور 3x ایز اٹ لکھ لیں گے ویسے کا ویسے ہی, اور 5 میں سے 4 نکالیں گے 1 رہے گا. تو x اسٹوڈنٹ ہمارے پاس کتنا آ جائے گا, 1/3. 3 کو ہم نے کیا کیا ہوا ہے, کراس ملٹیپلائی کر لیا ہوا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹ, یہ ہمارے پاس بڑا سمپل سا کویشچن تھا, یہ اس کا آنسر آ گیا ہوا ہے. اب دیکھیں سولوشن سیٹ, اس کا جو حل سیٹ ہے اس میں کیا ویلیو ہے, پہلی ویلیو 3 ہے, 3 لکھ لیں. اگلی ویلیو ہے 1/3, وہ لکھ لیں. تو یہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹ پہلا کویشچن کا, یہ دوسرے کویشچن کا فرسٹ پارٹ ہے. آپ سوچ رہے ہو کہ ہم نے کویشچن 1 کیوں نہیں کیا. تو کویشچن 1 جو ہے وہ آپ کے پاس ٹرو اینڈ فالس ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ ایگزام میں ٹرو اینڈ فالس نہیں آتے, MCQs آتے ہیں, تو دیٹس وائی وہ نہیں کیا گیا. اب نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں, کویشچن 2 کا سیکنڈ پارٹ. جی اب دیکھیں, نیکسٹ میں آپ کے پاس ہے اس کا سیکنڈ پارٹ ہے. تو اس میں ہم کیا کریں گے, 1/2 ایز اٹ لکھ لیں گے, اور یہ جو بار ہے 3x + 2 یہ بھی ہم ایز اٹ لکھ لیں گے. اور اسٹوڈنٹ یہ جو -4 ہے ایکول کے اس طرف جائے گا, تو یہ آپ جانتے ہیں یہ پلس ہو جاتا ہے, یہ +4 ہو گیا, اور 1/2 ایز اٹ آ گیا, اور یہ کیا ہے 3x and +2, اور آپ جانتے ہیں 11 میں 4 ایڈ کریں دیٹ ول بیکم 15. اب یہ جو 2 ہے اسٹوڈنٹ, آپ اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ جو 2 ہے ہم اس 2 کو, یہ ڈیوائڈ ہو رہا ہے
इस 2 को हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप इसमें यूँ लिख लो, क्योंकि 2 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं है, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट इस 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कर सकते हैं। तो मैं इसको डिटेल में आपको बता रहा हूँ। तो देखिएगा 2 एज इट आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1/2। ऊपर वाली चीज़ ये वैसी की वैसी 3x + 2 इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट 2 है और मल्टीप्लाई बाय 15। तो जो मैंने लिखी थी चीज़ वो मैंने वैसे ही बता दी है। ये आप देख सकते हैं, ये 15 एज इट है, ये 15 एज इट है। और ये सारी जो वैल्यू है 1/2 3x + 2 का जो बार है, ये देखें ये भी एज इट लिख दिया है। और जो बात मैंने लिखी थी मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि नीचे 2 था, वो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया और यहाँ पे भी लिख दिया। ठीक है, तो सिंपल हमने क्वेश्चन को एज इट रहने दिया और 2 को दोनों साइड पे हमने मल्टीप्लाई किया। तो अब ज़रा देखिएगा, ये 2 इस 2 से कटेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 3x + का 2, ये बार एज इट आ गया। और 2 को 15 से करें, आप जानते हैं 30 होता है। अब अगेन देखिएगा, अब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट बन गए, मगर उससे पहले देखें हम क्या करेंगे, इस 3x + 2 को वैसे लिख लेंगे। ये जो बार हम देख रहे हैं ना, अब इसको बार को ख़त्म करके हमने क्या लिख लेना है, +-30। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के 2 पार्ट बने, जैसे हमने पहले भी किया था फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में। तो अब हम इसके 2 पार्ट बना लेते हैं। तो देखिएगा पहला पार्ट क्या आएगा, 3x + 2। अब जानते हैं लेफ़्ट साइड वैसे की वैसे ही आएगी, 3x + 2, 30 को हम प्लस लिख लेते हैं। और उसके बाद 3x + 2 और इज इक्वल टू -30 लिख लेते हैं। एक दफ़ा हमने प्लस का लिख लिया, एक दफ़ा माइनस का लिख लिया। 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 - 2, 3x एज इट आ जाएगा। अब जानते हैं 30 में से 2 निकालेंगे तो ये 28 आएगा। और x की वैल्यू क्या आ जाती है, 28/3। तो ये आपने एक रिज़ल्ट निकाल लिया स्टूडेंट, x की वैल्यू कितनी आ गई, 28/3। नेक्स्ट में देखें, इसमें अब क्या आएगा, 3x एज इट आ गया, माइनस का 30 एज इट आ गया। ये आप देख सकते हैं प्लस का 2 है, ये इक्वल के इस साइड पे आएगा, ये माइनस का 2 आएगा। 3x एज इट इज इक्वल टू माइनस का 30 और माइनस का 2, आप जानते हैं माइनस का 32 होता है। x आपने निकालना है, x को अलहदा करेंगे, इस 3 को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस का 32/3 आएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे जो है वो 2 आंसर आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसका सॉल्यूशन सेट बता देंगे। तो देखिएगा सॉल्यूशन सेट, यानी कि इसका हल सेट क्या आ गया, एक आंसर है 28/3 और दूसरा क्या, माइनस का 32/3। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर है। नेक्स्ट में देखें जी, अब नेक्स्ट में देखें हमारे पास है 2x + 5 का बार इज इक्वल टू 11 है। आप जानते हैं अब हम क्या करेंगे, 2x + 5 वैसे ही लिख लेते हैं। और अब जानते हैं 11 की जगह हम क्या लिख लेंगे, +11 +-11। रीज़न आप जानते हो कि जब भी बार को ख़त्म करते हैं तो ये प्लस माइनस चाहे राइट साइड में लिख लें, लेफ़्ट साइड में लिख लें, तो कोई इशू नहीं है, मैंने राइट साइड में लिख दिया। तो ये करने के बाद आप जानते हैं कि इसके अब 2 पार्ट बन गए हैं। तो देखिएगा इसके अब हम 2 पार्ट बना लेते हैं। अब ये 2 पार्ट कैसे हैं स्टूडेंट, देखिएगा 2x + का 5। अब जानते हैं अब यहाँ पे एक दफ़ा हम प्लस का 11 लिखेंगे और फिर 2x + का 5 इज इक्वल टू माइनस का 11 लिखेंगे। तो एक दफ़ा हम इसको प्लस का यूज़ करेंगे, एक दफ़ा माइनस का। तो देखिएगा 2x एज इट आएगा, 11 + का 5 इधर आके माइनस का 5 और 2x एज इट
आप जानते हैं 11 में से 5 निकालें 6 आता है, x को वैसे लिख लो और 6 को डिवाइड कर लें 2 पे, तो x का आंसर कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाता है। 6 को 2 पे डिवाइड करने से स्टूडेंट 3 आता है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक आंसर आ गया, x इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट वाला देख लें, राइट साइड वाला 2x एज इट, आप देख सकते हैं माइनस का 11, ये भी प्लस का 5 इधर जाके माइनस का 5 हो गया। 2x हम ऐसे लिखेंगे और माइनस का 11 माइनस का 5 ये आप जानते हैं माइनस का 16 होएगा। x आपने निकालना है तो माइनस का 16/2, तो ये आप जानते हो माइनस के 16 को 2 पे करें तो माइनस का 8 आएगा। तो ये आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे लिख लें एंड में सॉल्यूशन सेट 2 आपके पास आ गए हैं, एक 3 है और एक माइनस का 8। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने x की 2 वैल्यूज को मालूम कर लिया जो कि हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट में देखें जी, अब नेक्स्ट में देखें, अब यहाँ पे क्वेश्चन देख के आपको ये मुश्किल लग रहा होगा, मगर ये भी सिंपल है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि इसकी साइड पे भी बार है, इसकी राइट साइड में भी बार मौजूद है, मगर हमने इसका मेथड सेम करना है। 3 + 2x एज इट आएगा और फिर क्या लिख लेंगे, प्लस माइनस 6x और माइनस का 7। ये सेम स्टूडेंट हमारे पास है, सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो क्या किया जाता है ये आप अच्छे से जानते हो। अब हम इस क्वेश्चन को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कैसे किया जाएगा, आप लिख लेंगे 3 + 2x = प्लस की वैल्यू लिखेंगे पहले, वो क्या है 6x माइनस की 7, और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड स्टूडेंट हम वैसे की वैसे लिख लेते हैं। 3 + 2x = माइनस का 6x माइनस का 7। अब देखिएगा 3 + 2x = ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं 6x माइनस 7। अब x की वैल्यूज़ को हम एक साइड पे कर लेते हैं, कैसे बोला 6x और माइनस का 2x, ये आप देख सकते हैं ये प्लस का 2x है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, और ये 3 एज इट लिख लिया, और ये माइनस का 7 इधर जाके प्लस का 7 हो गया। तो आप जानते हो 6 में से 2x निकालेंगे तो 4x आएगा, और 3 + 7 क्या हो जाएगा 10। तो x आपने निकालना है, x को इस तरफ रख लें और ये 10/4 कर लें। तो आप देख सकते हैं ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 × 5 = 10 एंड 2 × 2 = 4। तो यहाँ पे x का जो आंसर आ गया वो 5/2। तो एक आंसर स्टूडेंट आपने निकाल लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखिए, अब नेक्स्ट में देखिए इसी को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 3 + 2x = माइनस को 6 से किया, माइनस का 6x और माइनस माइनस प्लस का 7। अब अगेन देखिए x को हम सेपरेट करेंगे, अलहदा करेंगे, तो ये 2x, ये माइनस का 6x इधर आके प्लस का 6x हो गया, और ये 2x एज इट = ये 7 एज इट आ जाएगा, और ये प्लस का 3 इधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये बन जाता है 8x = 7 में से 3 निकालेंगे 4, और x क्या आएगा जी 4/8। तो ये स्टूडेंट कितना बन जाता है 4 × 1 = 1 एंड 4 × 2 = 8, तो ये 1/2। तो देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह सिंपल सा ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको हम बॉक्स कर देते हैं। तो अब लास्ट में हम इसका सॉल्यूशन सेट बता देते हैं आपको। SS मतलब सॉल्यूशन सेट। तो x की 2 वैल्यूज है, एक तो स्टूडेंट 5/2 है, 5/2 लिख लें, और एक क्या है 1/2 वो लिख दें। ठीक है, यहाँ पे ये मुकम्मल होता है। नेक्स्ट में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखिएगा, ये x + 2 का बार है और माइनस का 3 = 5 - x + 2 का बार है।
تو ہم کیا کریں گے, سب سے پہلے x پلس 2 کا بار ویسے لکھ لیں گے, اور یہ دیکھیں نا مائنس کا x پلس 2 کا بار ہے, ایکول کے طرف جا کے یہ بھی پلس کا کیا بنے گا, x پلس 2 کا بار از اکول ٹو یہ 5 ایز اٹ آئے گا, اور یہ مائنس کا 3 ادھر جا کے پلس کا 3 ہو جائے گا. تو یہ بڑا سمپل سا اسٹیپ ہے. اب دیکھیں اسٹوڈنٹ ایگزیکٹلی یہ بھی x پلس 2 ہے اور یہ بھی x پلس 2 ہے, دو ویلیوز ہیں دونوں ایک جیسی. ہم کیا کریں گے, دونوں کو ایڈ کریں گے تو اسٹوڈنٹ بن جاتا ہے 2 انٹو ایکس پلس کا 2 اور از اکول ٹو 5 پلس 3 کتنا آ جائے گا 8. اور اس کے بعد دیکھیں x پلس 2 ویسی کا ویسی از اکول ٹو اس 8 کو اب ہم 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے, یہ کراس ملٹیپلائی کر کے نیچے آ گیا. تو اب کیا ہوگا, اب دیکھیے گا x پلس 2 از اکول ٹو 8 کو 2 پہ کریں گے 4 آئے گا. اب اس کویشچن کے بھی دو پارٹ کر لیں گے. کیسے کیسے, یہ دیکھیے گا x پلس 2 از اکول ٹو 4, یہ دیکھیے گا x پلس 2 از اکول ٹو پلس مائنس کا 4. یہی رول ہے بار ختم کرنے کا. تو x پلس 2 ویسے ہی 4 لکھ دیا, اور پھر کیا رہے گا x پلس 2 از اکول ٹو مائنس 4. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے, x اکول ٹو آ جائے گا 4 مائنس 2, تو اس کا آنسر آ جائے گا 2. اور یہ کیا ہے, x از اکول ٹو مائنس کا 4 اور مائنس کا 2, تو یہ بن جاتا ہے اسٹوڈنٹ مائنس کا 6. تو یہ ہمارے پاس آنسر ہے, بڑا سمپل سا. تو اگر آپ سولوشن سیٹ کی بات کریں گے تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں سولوشن سیٹ از اکول ٹو 2 اینڈ مائنس کا 6. نیکسٹ دیکھیں, اب نیکسٹ میں دیکھیے کویشچن نمبر 6 ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1/2 x پلس 3 کا بار ہے پلس 21 از اکول ٹو 9 ہے. تو اس میں ہم کیا کر لیں گے, 1/2 ایز اٹ لکھ لیں گے, اور x پلس 3 جو ہے وہ بھی ہم ایسے لکھ لیتے ہیں x پلس 3 بار, اور آپ دیکھ سکتے ہیں 9 ایز اٹ آئے گا اور مائنس کا 21 اس طرف آ جائے گا. یہ اسٹوڈنٹ پلس کا 21 ہے, ایکول کے اس طرف جائے گا تو یہ نیگیٹو کا ہو جائے گا. اب دیکھیں 1/2 ایز اٹ آئے گا اور x پلس 3 لکھ لیں گے, اور آپ جانتے ہیں 9 میں سے مائنس 21 کریں گے دیٹ ول بی مائنس کا 12, اور اس 2 کو اب کراس ملٹیپلائی کریں گے اس 12 کے ساتھ, تو x پلس 3 آنسر آ جائے گا مائنس کا 24. اب جانتے ہیں 2 کو 12 سے کریں گے مائنس 24 آئے گا. اب دیکھیں اسٹوڈنٹ ہمارے پاس جو بار ہے وہ نیگیٹو کا آ گیا مائنس کا 24. تو یاد رکھیے گا جو ابسلیوٹ ویلیو ہے وہ نیگیٹو کبھی نہیں ہوتی, جیسے ڈسٹینس ہوتا ہے کبھی بھی نیگیٹو نہیں ہوتا. تو آپ اس میں جس یہ لکھ لیں گے اگر آنسر نیگیٹو آیا, آپ یہ بتائیں گے اٹس سولوشن از ناٹ پاسبل. ریزن کیا ہے کہ آنسر نیگیٹو کا آ گیا, اٹس سولوشن از ناٹ پاسبل, یعنی کہ اس کا حل ممکن نہیں. تو یہ لکھیں گے, تو اگر حل ممکن نہیں ہے تو اس کا جو سولوشن سیٹ آئے گا دیٹ ول بی ایمٹی سیٹ, اور اس کو ایسے لکھ لیں یا اسٹوڈنٹ ایسے لکھ سکتے ہیں 5. تو یہ اس کا سولوشن پاسبل کیوں نہیں ہے, کیونکہ اس کے آنسر میں مائنس کا 24 آیا. نیکسٹ میں دیکھیں, نیکسٹ دیکھیں اس کا کویشچن نمبر 7 ہے اسٹوڈنٹ. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 3 - 5x/4 کا بار ہے, مائنس کا 1/3 ہے از اکول ٹو 2/3 ہے. تو کیا کیا جائے گا, یہ جو بار ہے اس کو ہم ویسے لکھ لیں گے 3 - 5x ڈیوائڈ بائی 4 از اکول ٹو, یہ مائنس کا 1/3 ہے اور یہ 2/3 ہے. 2/3 تو میں ویسے لکھ لیتا ہوں, یہ مائنس کا 1/3 ادھر آ کے پلس کا 1/3 ہو گیا. تو اب یہ دیکھیے گا 3 - 5x اور 4 یہ ویسے آئے گا از اکول ٹو, اس کا ایلسیم لیں گے اسٹوڈنٹ, یہ بھی 3 یہ بھی 3 لکھ لیں گے, 3 سے کٹے گا تو یہ 2 آئے گا, پلس
ये 3 से कटेगा तो 1 आएगा। ये एलसीएम लेना आप जानते हैं। तो फिर देखिएगा 3 - 5x/4 वैसे ही आ गया, बाहर वैसे लिख लेंगे, और 2 + 1 3 है, और नीचे भी 3 है। अब जानते हैं 3 से कटेगा तो 1 आएगा, तो इक्वल टू 1 आ गया। और ये बाहर वाली वैल्यू वैसे ही 3 - 5x/4। और नेक्स्ट स्टेप बड़ा सिंपल है स्टूडेंट, आप जानते हैं बार को ख़त्म किया जाएगा। कैसे, ये देखिए आप, इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ। 3 - 5x/4। और जब बार ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस माइनस का 1। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है। जैसे ही बार को ख़त्म करेंगे तो राइट साइड में +-1 आता है। लेफ़्ट साइड में भी लिख सकते हैं, मगर हम इसको तमाम क्वेश्चंस के अंदर राइट साइड पे लिख रहे हैं। तो जब हम इसको ख़त्म कर लेते हैं बार को, फिर क्वेश्चन के 2 हिस्से बन जाते हैं। ये बात हमने डिस्कस की हुई है। पहला हिस्सा क्या आएगा, 3 - 5x/4 इज इक्वल टू प्लस का 1 आएगा। पहले हम प्लस कर लेते हैं, और 3 - 5x/4 इज इक्वल टू माइनस का 1 आएगा। तो अब क्या करेंगे, 3 - 5x इज इक्वल टू 4 को 1 से करेंगे तो आप जानते हैं 4 आएगा। और अब ये देखिएगा, मैं -5x को इस तरफ रहने देता हूँ, और 4 इस तरफ आ गया एज इट। प्लस का 3 आप जानते हैं उस तरफ जाके माइनस का आएगा, तो माइनस का 5x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। 4 में से 3 निकाले, आप जानते हैं 1 है, तो x कितना आएगा स्टूडेंट, 1/-5। तो ये आपने जो है एक वैल्यू x की निकाल ली है। नेक्स्ट में देखें, अब ये देखें 3 - 5x इज इक्वल टू माइनस का 4। अब जानते हैं 4 को 1 से किया 4, और माइनस एज इट आ गया, और -5x को मैं इधर लिख लेता हूँ, और ये माइनस का 4 और माइनस का 3। माइनस का 3 इसलिए है, इस साइड पे प्लस का है, इक्वल के उस तरफ गया तो माइनस का हो गया, और ये माइनस का 5x इज इक्वल टू -7 आएगा। तो क्या होगा, अब यहाँ पे स्टूडेंट ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कटेगा, तो देन क्या होगा, x आपने निकालना है, x को हम अलग कर लेते हैं, इज इक्वल टू 7/5। तो ये आपके पास स्टूडेंट आंसर आ जाएगा, आपने x यहाँ पे निकाल लिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्यूशन सेट में अब जानते हैं 2 आंसर्स आप निकाल चुके हैं। सॉल्यूशन सेट में एक आ जाएगा 1/-5 एंड देन 7/5। तो ये सिंपल सा सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में देखें क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो अगेन देखिएगा, हम इसके बार को ख़त्म करेंगे, x + 5 आएगा डिवाइडेड बाय 2 माइनस का x आएगा इज इक्वल टू, अब जानते हैं +-6 आएगा। जब भी बार ख़त्म करेंगे तो यही किया जाता है। तो अब आप देखो, इसके 2 पार्ट बन जाएंगे। 2 पार्ट हमने पीछे भी काफ़ी क्वेश्चन में बनाए हैं। तो अब देखिएगा, पहला पार्ट इसमें क्या है कि हम x + 5 डिवाइड बाय 2 माइनस x, यहाँ पे आप लिख देंगे प्लस का 6, और फिर x + 5 डिवाइड बाय 2 माइनस x इक्वल टू माइनस का 6। तो देखिए, तमाम क्वेश्चन में एक ही मेथड आ रहा है, एक दफ़ा प्लस का लिखा जाता है, एक दफ़ा माइनस का, और लेफ्ट साइड सेम ही आती है। तो देखिएगा, x + 5 एज इट आ गया इज इक्वल टू 6 को मैं वैसे लिखूंगा स्टूडेंट, और ये 2 माइनस x क्रॉस मल्टीप्लाई कर गया इसके साथ। इसी तरह x + 5 एज इट, -6 भी एज इट, और ये जो है 2 माइनस x, ये हम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, अब लेफ्ट साइड हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। x + 5 इज इक्वल टू 6 को 2 से करेंगे 12, और -6 को x से करेंगे 6 का x। अब x को सेपरेट करेंगे कैसे, ये वाला x एज इट, ये स्टूडेंट माइनस का 6x इधर आके प्लस का 6x हो गया इज इक्वल टू, ये वाला 12 एज इट आ गया,
प्लस का 5 इस तरफ आके माइनस का होता है। तो ये 6x था, x प्लस 6x अब जानते हैं 7x है, इज इक्वल टू 12 में से 5 निकालें, ये भी 7 है, तो ये 7 से गया, तो x का आंसर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाता है। ये आपने x निकाल लिया है। तो इसमें देखिएगा अब क्या आएगा, राइट साइड में x प्लस 5 एज इट इज इक्वल टू माइनस 6 को 2 से किया, माइनस को 12 और माइनस माइनस प्लस का 6x। तो अब ये क्या करेंगे, अब 5 ये वाला एज इट आ गया स्टूडेंट, ये माइनस का 12 इधर जाके प्लस का 12 हो गया, ये 6x एज इट और ये x इधर जाके माइनस का x। तो अब जानते हैं 6x में से x निकालेंगे तो जस्ट 5x आएगा, और 5 प्लस 12 17 होता है, तो x का आंसर क्या रहेगा 17/5। तो यहाँ पे भी आप स्टूडेंट देख सकते हैं हमारे पास 2 आंसर्स आए हैं x के, तो 2 ही आने चाहिए थे। तो सॉल्यूशन सेट पर क्या होगा, एक तो 1 आएगा, दूसरा 17/5, ये हमारे पास आंसर है।